دشمنوں پر مسلط ہو گئے، ان کی روحوں کو ہڑپ کر جا، ان کی روحوں کو ہڑپ کر جا۔ اے دنیا ظلمت کے حاکموں، اپنے مخالفین پر غلبہ پا کر انہیں نیز و نابود کر دے، اور اسے بھی جس نے تجھے سجدے نہیں کیے اور نہ ہی کرے گا۔ میں تیرے موکلوں کو پکارتا ہوں، پکارتا ہوں۔ تقریباً 3000 سال قبل خداوند متعال نے ایک بار پھر اپنے صالح بندوں میں سے ایک سلیمان ابن داؤد کو اپنا پیامبر منتخب کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو حق و اعتدال کی جانب دعوت دیں۔ سلام۔ تمہارے باقی ساتھی زیادہ شرمیلے ہیں۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ سلام سلام۔ سلام عزیزان من۔ لوگ کہتے ہیں جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں تو آپ کی تنہائی میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، تم لوگ بالکل بھی مخل نہیں ہوئے۔ آؤ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ جب میں تم لوگوں جتنا تھا تو اپنے بابا داؤد نبی کے ہمراہ یہاں آیا کرتا تھا۔ وہ اسی پتھر پر بیٹھا کرتے تھے اور نہایت خوش لہنی کے ساتھ آیات زبور کی تلاوت فرماتے تھے، اور تمام پہاڑ اور پرندے ان کے ہم آواز ہو جایا کرتے تھے۔ کیا پرندے آپ کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں؟ پرندے؟ بھائی، تمام لوگ تیار ہیں؟ کیا یہی ہماری بات چاہیں جو تشریف لا رہے ہیں؟ درود بر سلیمان نبی، درود داؤد نبی کے فرزند پر خدا کا درود ہو۔
آپ کی دعا سے اس سال ہماری فصل پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ پیغمبر خدا فصل کی کٹائی سے پہلے دعا نہیں فرمائیں گے؟ خداوند اس دن کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ دن کہ جب انسان خود اپنا بویا ہوا کاٹتا ہے اور ہر وہ چیز کاٹتا ہے جو اس نے بوئی ہوتی ہے۔ پروردگارہ، اس زمین پر خیر و برکت نازل فرما اور یکتا پرستی کی ترویج میں ہماری مدد فرما۔ آؤ باذن الہی شروع کرتے ہیں۔ سلام سلام۔ سلام میرے والی۔ آپ نے بڑی زحمت کی۔ مریم عزیز جان، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میرا دل ہی نہیں مانا۔ یہ سال کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ہاں واقعی یہ سب خدا کی لطف و عنایات ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ ہے یہیں پر۔
सूरज मेरे लिए पलटा दो। हमने भरपूर कोशिश की कि सरजमीन पर निज़ाम इलाही को नाफिज करें, इस तरह हुकूमत करें कि खुदा हमसे राजी रहे। फिर ये कैसे मनाजिर हैं जो मेरी निगाहों के सामने लाता है? वो मुझसे चाहता क्या है? तेरी अजीम और लाजवाल हुकूमत के मुकाबिल मेरी हुकूमत एक बेजान लाश की मानंद पड़ी है। खुदा बंदा, मैं कहाँ और तेरी अजीम और लाजवाल हुकूमत कहाँ? सुलेमान, हमने बारहा तुम्हें अपनी खास अल्ताफ व इनायात के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के
علم میں اضافہ کیا، اور ہم نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر تم دونوں کو فضیلت و برتری عطا کی، اور جبکہ ہم نے تمہیں کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی، ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے اور تمہیں کار رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن جان لو کہ عنقریب بہت سے گمراہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے۔ پروردگارا، مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت کی جو رہتی دنیا تک تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا، کہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تمام قبائلی سرداروں، ملک کے تمام کاہنوں کو خبر کر دو کہ جتنا جلدی ممکن ہو یروشلم پہنچے۔ ہمیں سخت ترین دشواریوں کا سامنا ہے، سخت ترین۔ جناب یازار، ہمیں نہایت خوشی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یروشلم کے ایک عظیم عالم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے جناب یازار؟ خداوند متعال نے ہماری حکومت کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی، تو میں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ میری حکومت کو رفت عطا فرمائے، اور اب اس کا یہی ارادہ ہے۔ آپ کی حکومت کو رفت دے؟ یعنی جنت نظیر بنا دے، جو آخر الزماں کی بہشت کی مانند ہو، جو نعمتوں سے مالا مال ہو اور کمال بشری کی معراج ہو۔ بہشت معود، جس کی خاطر بنی اسرائیل اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جب تک اس دنیا میں شر اور بدی کا وجود باقی ہے، تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں ان خطرناک فتنوں کی سرکوبی کرنا ہوگی۔ کیسی فتنے جناب سلیمان؟ فتنہ جنات اور شیاطین۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو تمام عالم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ان قریب ان میں سے بعض دوبارہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے۔ جنات اور شیاطین جو اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، وہ غلیظ ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، نزدیک، بہت ہی نزدیک، اور ان قریب وہ ہماری اس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور وہ بہشت تب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ان انسانیت کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی حکومت، کیسی جنگ؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نہایت سنجیدہ ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کو ملک کے دور دراز علاقوں سے یہاں بلوایا ہے۔ اور اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس صورتحال میں آپ سب کی مدد اور تعاون۔ جناب سلیمان، آپ اپنی رسالت کے لیے کیا دلیل رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کس بزرگ نے توریت میں کسی ایسی تفسیر کی تائید کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے خداوند متعال سے درخواست کی، اور اس خدا نے آپ کی درخواست قبول بھی کر لی۔ آیا آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی خدا کے ساتھ آپ کی اس گفتگو کا گواہ ہے؟ کیا معلوم کہ یہ سب محض آپ کے اپنے ذہن کا وہم و خیال نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سبھی میرے باپ داؤد نبی اور میرے بھائی سلیمان کی رسالت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند نے ان پر کیا کیا عنایات کی ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو معجزات ان کی پیامبری سے متعلق نقل کیے جاتے ہیں، وہ ہم علماء یہود کے نزدیک کبھی ثابت نہیں ہوئے، اور نہ کبھی ہم نے ان کی رسالت کی کسی واضح نشانی کا کوئی مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں محض آپ نے اپنی حکومتی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے گڑی ہیں، خود کو بادشاہ کہلواتے ہیں۔ بس ہر رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔
बेहतर ना होता कि खुद को रियाय का हमदर्द जाहिर करने के बजाय हुकूमत को चलाने के लिए हमसे मदद और ताउन तलब करते। कम से कम यूं इस किस्म की अजीब और गरीब मन गढ़ंत कहानियां बनाने पर मजबूर तो ना होते, और ना ही हमसे ये तवक्को रखते कि हम अपने कबीलों को कैसी तस्वुराती जंग के लिए आमादा करें। क्या ये आप न थे जिन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई की जिम्मेदारी का हम से छीन लिया था और दाऊद की किताब ज़बूर का निफाज करके हमारी किताब तौरात को पसे पुश डाल दिया था? आपने सफीना नूह में मौजूद तमाम तबर्रुकात पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि हम उलमा यहूद शरीयत मूसा के वारसीन में से हैं। अपनी जवानी के आगे हमारे बुढ़ापे और सफेद बालों का भी कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। दीगर पैगंबरान खुदा नूह, इब्राहिम, यूसुफ, मूसा में से किसी ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया। इन बंदिगान खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बहिश्त खुदा को जमीन पर कायम कर सकते हैं या अनदेखे शयातीन के खिलाफ लश्कर कशी की ताकत रखते हैं। वो लोग निहायत मजलूमियत के साथ इर्तिकाए दीन और तरवीज खुदा परस्ती में मसरूफ रहे और इस राह में क्या क्या फिदाकारियां नहीं की। सच कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी कि जब इनके वालिद दाऊद ने एक 9 साला बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, शदीद एतराज किया कि हुकूमत चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, तजुर्बे की। अपने अपने शहरों को लौट जाए, है बुजुर्गान बनी इसराइल। आली जनाब, आली जनाब, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। शाह फर्जंद मारिब, खानदान इब्राहिम को भूल गए जो यूं हमसे सुलेमान की तरफदारी कर रहे हो। दीगर सिपहसालारों को भी हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे, ना कि हमारी। आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हाँ, हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक। यरूशलेम, सबसे ज्यादा फितने यहाँ जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहाँ दारुल खिलाफा में रहकर यहाँ की हिफाजत करें। जनाब योआब, आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब। ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशबम, आप मुल्क के जुनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरिक के हिस्से अरिया की जानिब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलेम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं। फितने बर्पा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित हों। जनाब योआब, बड़े लाओ लश्कर के हमरा तशरीफ लाए हैं।
मैं अपने कदीमी जंगजू साथी से मिलने आया हूँ। इजाजत है? खुशामदीद। ऐ लोगों, हमें एक इंतहाई सख्त और कड़ी आजमाइश का सामना है। दुनिया के दरवाजे जिन्नात और शयातीन पर खोल दिए गए हैं। अब तक वो इंसानों को सिर्फ वसवसों में मुब्तला करने पर कादिर थे, लेकिन अब वो बराह रास्त हम पर असरअंदाज होंगे और नतीजतन हर किस्म की बुराई और शर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। ये शैतानी ताकतें अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हमलावर होंगी, जिनकी पहले उन्हें इजाजत न थी। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी घात में है, जिसके लिए आप सबको होशियार रहना होगा। लेकिन शैतानी हमले बाईमान इंसान के मुकाबिल कभी कारगर साबित नहीं होते। बस आए मुत्तहिद हो जाएं और खुद को खालिसतन अपने खालिक के लिए वक्फ कर दें। परवरदिगार की रहमत के दरवाजे उसके बंदों पर हमेशा खुले रहते हैं। बस मैं आप सबसे चाहूंगा कि तक़वा इख्तियार करें और फरमाने रसूल खुदा की इताअत करें, ताकि फितनों के शर और शयातीन के खतरे से अमान में रहें। तकवा और इताअत पैगंबर खुदा ही हमारा हथियार है, वाहिद हथियार। तो अब तक आए क्यों नहीं? 15 दिनों से हमारे बीवी बच्चे इस अजाब से दो चार हैं। वो कहां से हम पर हमलावर होंगे? दरिया से, जंगल से या फिर पहाड़ से? कहते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह। जिन्नात और शयातीन का कोई वजूद नहीं, ये सब तुम लोगों के वहम ख्याल की पैदावार हैं, मगर न वो बजाते खुद कोई मादी जिस्म नहीं रखते। ये तुम लोग हो जो गुनाहों के जरिए उन्हें अपने ज़हनों में परवान चढ़ाते हो। हकीकतन ये शैतान है क्या? शैतान हमारे अमाल और मनफी सोचे हैं। आप खुदा की बरगुज़ीदा कौम हैं, लिहाजा कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। आप लोग सिर्फ हामलान तौरेत की पैरवी कीजिए, ना कि दूसरों की। आपने कहा था ये मेरी आखिरी किस्त है। बहुत वक्त दे चुका मैं तुम्हें। कैसे हो इज़रा? जनाब मालिक, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। 1 साल पहले जो धार मैंने इनसे लिया था, ये मुसलसल उसका सूद मुझसे ले रहे हैं। ये वही शख्स है जिसकी अब मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शराय मुनाफा और माए यहूद की मुतफ़िक़ा राय की बुनियाद पर तय किया जा चुके। अब तक ये उसका 2 गुना मुझसे तलब कर चुके हैं, जबकि मेरा कर्ज वैसे का वैसा है। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूं। ये कहां का इंसाफ है? आखिरी कहां का उसूल है? ये कैसी शरअ है? आखिर खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? खामोश हो जाओ। शरीयत खुदा के बारे में क्या जानते हो? हाँ। इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम वाकई परेशान हो तो जनाब मायर से राब्ता करो, वो निस्बतन कम सूद लेते हैं। ये मेरा सामान है, आप मुझे ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। ले सकता हूं। लो, ये तुम ही ले लो, लेकिन यूं बर्बाद क्यों तो मत झगड़ करो। रहे हो? झगड़ा मत करो, बस करें। शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रहे हैं? मेरा ही भाई चंद सिक्कों की खातिर मुझ पर हमला कर रहा है। हम जिनका आपस में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था, भला इन सिक्कों की अहमियत ही कितनी है? कितनी अहमियत है? देख रहे हैं, जब से ये शहर बनी इस्राइल के हाथों फतह हुआ, हमेशा ही अमन का गहवारा था। लेकिन अब तुमने लोगों पर दहशत तारी कर दी है और लोग आपस में दस्तो गिरेबां हो रहे हैं। बिला वजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शयातीन हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ऐ लोगो, होश के नाखुन लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा ना दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें।
کہیں حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دوسروں کے مال پر نظر رکھیں. سود مت کھائیں، سود مت لیں، تاکہ شیطان آپ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے. آئیں اس خدا مہربان کی پناہ میں آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں. جوان، اس شہر میں قبیلہ افراہیم کی زندگی کے تمام اصول و ضابطے کتاب خدا کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں. حقیقی شریعت شریعت موسیٰ ہے، نہ کہ ان کی خرافات. آخری بات، آپ میں سے جس کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو تو وہ اپنا قبیلہ چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جائے، اور بس. یہ لوگ برسوں سے اس طرز زندگی کے عادی ہو چکے ہیں. آخر آپ لوگ حالات کو دگرگو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے. سلیمان کے دعووں نے لوگوں کو مشتعل کر دیا ہے. میں اب مزید ان قبائل کو نہیں سنبھال سکتا. سب کے سب سلیمان کی جانب کھینچے چلے جا رہے ہیں. اس کے پاس تابوت سکینہ ہے اور وہ غیر معمولی طاقت کا حامل ہے. شیطانوں کے پلٹنے سے تمام چیزیں اس کی مٹھی میں آ جائیں گی. نہیں، ان کا پلٹنا ہمارے مفاد میں ہے. آرال، اس جادوگر کو کس نے یہاں بلایا ہے؟ میں نے اسے بلایا ہے. ان حالات میں ہمیں مختلف ذرائع سے استفادہ کرنا ہوگا. سنو، کتوں اور بھیڑیوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ دنیا کے بڑے بڑے نام اور افراد نے انہیں طاقتوں کے بلبوتے پر دنیا پر حکومت کی ہے اور نت نئے کام انجام دیے ہیں. نمرود، فرعون، کیسے کیسے نہ عظیم تمدن مارے سے وجود میں لائے. اب ہزاروں سال بعد پھر یہ طاقتیں زمین پر دوبارہ پلٹیں گی اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے خدمتگاروں کو ہرگز فراموش نہیں کریں گی. آپ لوگ بھی اگر دولت دنیا کے متمنی ہیں اور اگر تمام قوموں پر برتری اور سروری کے خواہاں ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں. ہم علماء یہود. لوگ کیا کہیں گے؟ جناب آزار، جس روز سے سلیمان تخت حکومت پر بیٹھا ہے تب سے میں اس کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا تھا. جس وقت اس نے اپنے باپ کی طرح پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ایمان مزید محکم اور عزم مزید پختہ ہو گیا. اگر یہ مخلوقات آ گئیں تو اس مغرور جوان کے غرور کو خاک میں ملا دے گی. تقویٰ اور اطاعت سلیمان اس وقت جو زیادہ خطرناک ہے اطاعت سلیمان ہے، اور اسی بات کو اس کی شکست کا سبب بننا چاہیے. جب سلیمان بہت چھوٹا تھا تو ایک روز ایک کسان کا اور ایک دوسرے آدمی کا، جس کی بھیڑوں نے رات کے وقت اس کسان کے کھیتوں کو رون ڈالا تھا، آپس میں جھگڑا ہو گیا. خدا نے سلیمان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی. داؤد نے کہا، دیکھا سلیمان کس فضیلت کا حامل ہے، لیکن مخالفین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ تم ایک بچے کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہو. میرا بیٹا سلیمان مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا. مجھے ایسا محسوس ہوا گویا وہ خود کو آنے والی مشکلوں کے لیے تیار کر رہا ہو. اور آج وہ دن آ ہی پہنچا ہے. مریم، میں اس کے لیے نہایت فکر مند ہوں. مادر جان، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا. آل داؤد نے اسی دن کے لیے تو تربیت پائی ہے مادر جان. مجھے اپنے بیٹوں پر نہایت فخر ہے. ننھے مہمان کی کیا خبر ہے؟ پہلے کی بنسبت آج کل اس کی حرکت زیادہ محسوس کر رہی ہوں. مدتوں بعد پروردگار نے ہمیں بچے کی نعمت سے نوازا ہے. مجھے تو جلن سی ہونے لگی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب وہ آئے گا تو آپ کی تمام تر توجہ اپنی جانب کر لے گا.
बहुत सख्त दिनों का सामना है ना आपको? इससे पहले किसी भी पैगंबर को इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। क्या हम कामयाब हो जाएंगे? परवरदिगारा, मर्दा में यरूशलेम और दीगर शहर आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी खसलतों के असीर हैं। क्या वो इस आजमाइश पर पूरे उतर सकेंगे? क्या हुआ है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हो? खुदावन हमारा पुष्पनाह है। सुलेमान नबी ने फरमाया था हम दुआ करके निजात पा सकते हैं। अब तलवार ही बेहतरीन वसीला निजात है। वो दोनों अफराद हमारे कबीले से हैं। वो बाइज्जत लोग हैं, उन्हें छोड़ दो। मुझसे काम ले। क्या कल रात नहीं देखा कि क्या हुआ था? बस हम कुछ देर उनकी निगरानी करेंगे ताकि सब कुछ अपने मामूल पर आ जाए। यहाँ सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं। खवातीन और बच्चों की जान को खतरे में मत डालें। अपने सिपाहियों को यहाँ से ले जाएं। वरना खुद ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। जनाब मायर, अमन और अमान के कयाम में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। देखा जनाब सुलेमान, देखें इनकी भेड़ों ने हमारे साल भर की मेहनत जाय कर दी। इसे बात के लिए उठा रखें, फिलहाल आपस में सुलह कर लें। सब सवार हो जाए, जल्दी करें,
सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। क्या हुआ? अचानक ही रवाना हुए हैं। जल्दी करें। गालिबन अरीहा जा रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। भाई अदोनिया, भाई चंद लोगों ने अपने अजीजो अकारिब पर हमला कर दिया है। हमने अक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मुमकिन है कि हम उन पर काबू पा सकें। किसी भी लम्हे कोई भी मुतासिर हो सकता है। जनाब सुलेमान, हम खौफजदा हैं कहीं लुकमाए अजल ना बन जाएं। आखिर ये कैसी मुसीबत है जो हम पर नाजिल हुई है? खुदाया, है मेरे माबूद और मुंतहा मकसूद, है मेरे यारो मददगार, है मेरे मलजाओ मावा, तेरे सिवा कोई पनाहगाह नहीं है। मैं अपनी हर दाद और फरियाद फकत तेरी बारगाह में पेश करता हूं, ताकि फकत तू जो मेरा परवरदिगार है मेरी निजात का सामान करे। खुदाया, ये तेरे करम के मुनाफी है कि तू मुझ जैसे कमजोर और नातवा को
खूनखार दुश्मनों के चुंगल में यह को तन्हा छोड़ दे कि वो बलाएं मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े, और जिस इज्जत से तूने मुझे सरफराज फरमाया है उसे खाक में मिला दे। बारे इलाहा, हमारे दिलों को दोबारा अपने ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, ताकि हम तेरी खातिर दुश्मनों और मुफसिदों से जंग करने के लिए उठ खड़े हों और शैतान पर गालिब आ जाएं। ये आपका भाई था जिसने हमें लोगों की रहनुमाई न करने दी और उन्हें हमारे खिलाफ उकसाया। वो तो जाहिर है जो मुसीबत भी हम पर वारिद होती है वो मुशक्कस है। किसी ने भी आने वाले खतरे को संजीदा नहीं लिया। ये जवान हत्या के बाजार के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहा था। मामलाते बाजार? इनका मतलब सूद से है भाई। सूद? ये कबीला जब भी दवादारू या ज़राअत के अखराजात के लिए तहीदस्त हुआ है तो इसने हम ही से रुजू किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की है। और सूद जैसी लानत का क्या करेंगे? माले हराम से आलूदा आपकी इस जिंदगी का कितना भयानक अंजाम होगा, इसका कुछ अंदाजा है आपको? माले हराम? शहर के काहिनों पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं आप? आप तो खुद आसमानी किताब का इल्म रखते हैं। अकाबिरी ने शहर गवाह हैं कि हमने मां सिवाय अपने हक के लोगों से कुछ तलब नहीं किया। कौन सा हक? कैसी तलब? क्या इससे बड़ा अलमिया भी कोई होगा कि तालीमात मूसा के बरखिलाफ बनी इसराइल को इस अजीम और खौफनाक गुनाह का आदी बना रहे हैं और फलाह बेहतरी की राहें हमेशा के लिए उन पर मसदूद कर रहे हैं? कैसा गुनाह जनाब सुलेमान? सूद तो दौलत की जीनत है। उधार लेने वालों की रजायत उसे हलाल कर देती है, तौरात की रूह से भी और दीगर आसमानी सहीफों के रूह से। उस किताब के मुताबिक जिसमें अपनी पसंद से तहरीफात की हैं, उसके कलिमात में अपने मफाद के मुताबिक रद्दो-बदल किया है। किसने कहा कि लोगों के माल से सूद खाना आपका हक है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या नहीं जानते कि माले हराम वो आतिश जहन्नुम है जो आप सबको जलाकर खाकस्तर कर देगी? तो फिर हमारा जरिया माश क्या होगा? क्या भूख के मारे आवारा और सरगर्दा दर दर भीख मांगकर आलिमों की इज्जत को खाक में मिला दे? वाह हो आप लोगों पर, वाह हो कि आप लोगों की कम इल्मी आपकी सरकशी का बायस हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मेरी हुकूमत को एक लाश की सूरत में पड़ा हुआ मुझे क्यों दिखाया था। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए कि मुझे आप लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। कल मैं आप लोगों के पास किसी और को भेजूंगा, वो जो आप लोगों से ज्यादा इल्म रखता हो, वो जिसका इल्म उसकी गुमराही का बायस न बना हो। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए लेकिन वो साबित कदम रहेगा। दुनिया लरस जाए वो नहीं डगमगाएगा। कल का सानेहा याद है? इस वक्त दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है। अगर दोबारा जुनून हम पर तारी हो गया तो? आप में से जिन्होंने भी हक की पैरवी की वो फितनों से अमान में रहे। आपकी वही साबका जिम्मेदारी है। खुदा निगहदार। आप हमारे हमरा नहीं चलेंगे? शाय आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान ने उन्हें तलब किया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने बताया था कि तुम किसी तिलिस्म को मजीद ताकतवर बनाने में मसरूफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुलेमान को मार डालो। नहीं, मुमकिन है कि ये तिलिस्म खुद मुझ पर ही पलट आए। उसको मारने के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। मैं कहता हूं उसे मार डालो।
मेरे उस्ताद कहा करते थे, इल्म सहर फिरौन के अजीम साहिरों की मीरास है जो कारवाने मूसा के हमरा दरिया से गुजरे थे। ये उलूम कायनों के पास महफूज रहे और फिर सीना पसीना होते हुए हमारी नस्ल में मुंतकिल हो गए। वो हमेशा कहा करते थे, सूद असर जादू बेनती तरीन अशिया की कुर्बानी मांगता है। बेचारा। तुम चिल्ला शुरू करो, चिल्ला शुरू करो। सूरज की परस्तिश करने वाली अजीम कुव्वतों, नज़रे पर हसन सुलेमान की अजीम तरीन हस्ती को मार डालो निहायत अज़ियत के साथ। क्या हुआ? मरियम, हम अपना सफर जारी रखेंगे। भाई, आप यरूशलेम चले जाएं। अतराफ के शहरों में हम चले जाते हैं। खुदा ने चाहा तो हम हालात पर काबू पा लेंगे। शायद चंद सिपाहियों के साथ उनकी हमराही करो। जी आली जनाब। हरकत करें हेब्रोन की जानिब।
खुदावन आपको सब्र जमील अता करे जनाब सुलेमान। यरूशलेम के लोग आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। तुम यही रुको। जी बेहतर। ताज़ियत पेश करता हूं। अजीजों को खो बैठना निहायत सख्त और अजियतनाक होता है। आप अब देख रहे हैं कि हमारा कहना गलत न था। अजीज व कारिब सबसे पहले लुक़्मा अजल बने हैं। आपके दुश्मन हत्ता के बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। आज के बाद खून की नदियां बहेंगी। बेहतर होता कि आली जनाब इस अमर पर राजी न होते और दुनिया के मकाम व मनसब से किनारा कशी इख्तियार कर लेते और दीन की तरवीज करते और हुकूमत हमारे हवाले कर देते। बीवी बच्चे की मौत भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती। क्या यह जरूरी है कि अपनी माँ, भाई और तमाम दोस्तों की कुर्बानी के बाद ही आपको संगीनी का एहसास हो? आखिर कितने लोग आपकी इस जहाँ तलबी की नजर हों? कितने लोग? हम पर जो भी मुसीबत नाजिल होती है हम उसे मसलहत खुदाबंदी जानते हैं। आपने आले दाऊद की नाबूदी का कसद किया है और मैंने आपके खानदान की निजात और रुस्तगारी का। आपने मुझे याद किया। हाजिर खिदमत हूं। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। मुझे अफसोस है। मरियम और अपने बच्चे के लिए मेरा दिल बहुत उदास है। वो दुनिया वालों के इंतकाम की नजर हो गए। वो रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक तो है ना, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के। इस मुक़द्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहां पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबिया को अपनी इक्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहां आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इब्लीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका जमीन पर नूर अफशानी करेंगे। जनाब सुलेमान, हमारे कासिद खबर लाए हैं कि बैत अबिया, बार हरिस और ताले राफिडम जैसे शहरों के लोग शयातीन के हमलों पर गलबा पाने में नाकाम रहे हैं। जनाब याशबाउम और हिजकैल मुश्किल से दो चार हैं और आदुनिया हेब्रून पर काबू पाने के बाद आईने फारिस की जानिब रवाना हो गए। हमें जल्द से बुलून पहुंचना होगा। तुम्हें याद है, ये वो पहली ज़ीरा थी जो तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाई थी।
शाहे। जी आली जनाब। आप मेरे भाई के हमरा यहीं रुकिए। इताअत जनाब आली। अब्सलोन, यरूशलेम को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और मां को भी। खुदा हम पर रहम करे। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ। उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पनाह दे। इताअत। हमने सोचा भी न था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। बिलाखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? गौर से सुनो। इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। बानो, बानो मिशेल, हमारा क्या होगा? कुछ कीजिए बानो, हमें बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है, और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। रवाना होंगे। ठीक है? मैं ठीक हूं। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें।
शहर से बाहर निकल जाएं, जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम ले, बैठ जाएं। आगे जनाब आशर, आप भी आ जाएं, आ जाएं। कश्तियों को पानी में ले जाए, जल्दी करें, जल्दी करें, आ जाए, तरफ चलो, कश्तियों को पानी में डालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करें, कश्तियों को पानी में ले जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी खुदा और उसके पैगंबर की खातिर, खुदा और उसके पैगंबर की खातिर।
परवरदिगारा, मेरे इन सिपह सालारों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार दे। जनाब आशिर, आप क्यों? होश में आइए, शर शयातीन से खुदा की पनाह मांगे। मैं आलूदा हूँ, मुझसे खैर की उम्मीद मत रखे। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें, आलूदगी को खुद से दूर करें, खुदा की मोहब्बत से गाफिल मत हों। आप खुदा को पुकारें, खुदा को पुकारें, आप ऐसा कर सकते हैं। खुदा आप कोशिश करें। मैं नहीं कर सकता। पैगंबर खुदा, अदोनिया मेरे भाई, कबायली सरदारों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया है। यरूशलेम? आप सब जानते हैं ये तमाम हालात सुलेमान के पैदा करदा है। हुकूमत दोबारा उनके असली इख्तियारों के हवाले कर देनी चाहिए। जनाब याजार, बनी इसराइल के रहनुमा, सुनो, तुम्हारी निजात का हल जनाब याजार के पास है, ना कि पैगंबरी का झूठा दावा करने वाले के पास। अला में बगावत बुलंद किया है, वो भी दाऊद नबी के शहर में, कि जहां लोग उनकी रूह परवर आवाज और ज़ुबूर की दिल नशीन आयात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब आसिफ, आप क्यों उस खानदान गासिब की तरफदारी कर रहे हैं? अगर आप मुझे आलिम तरीन शख्स मानते हैं तो जान ले कि हमारे पास ये इल्म गिरा बहा अमानत है। इसके जरिए पैगंबरान खुदा को पहचाने और तस्लीम हो जाएं। अगर ऐसा ना हो तो ये इल्म नहीं, जहालत है। ऐ लोगों, पैगंबरान खुदा से जंग मत करो, ये एक नाकाबिल बख्शिश गुनाह है। डरो कहीं कौम मूसा की तारीख न दोहराई जाए।
कि जब कोहे तूर से उनकी वापसी में जरा ताखीर हो गई तो लोग सामरी हारून जादूगर की बातों में आ गए और गुसाला परस्त हो गए। जनाब आसिफ ठीक कहते हैं। मैं शहादत देता हूं सुलेमान पैगंबर खुदा हैं। लौटाओ लौटाओ इसहाक इसहाक। और ये उनके भाई हैं अबसलूम फर्जंद दाऊद नबी। ऐ लोगों, जान लो कि तमाम कबीलों ने मुझसे पैमान बांधा है। अगर मेरा कहा ना माना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आसिफ सच कहते हैं। इतने परेशान क्यों हो? सबसे बड़ा हथियार तो खुद तुम्हारे पास है। खुदाया मेरी उम्मत को फितनागरों के फितनों से निजात दे। फरीब खुर्दा सिपाहियों और सिपह सालारो, मैं यहूदियों की शरीयत का मुहाफिज और निगहबान हूं। हलाल और हराम का तयन सिर्फ मैं करूंगा। मैं तुम लोगों को किताब खुदा की जानिब दावत देता हूं और ये तौरात दस्तूर खुदावंद है, वो किताब खुदा के जो मूसा पर नाजिल हुई है। क्या आप भी दीन खुदा के मुकाबिल आओगे? हम तौरात के मुकाबिल हरगिज नहीं आएंगे। हमला! मेरे पर कब्जा कर लो! इस मर्तबा हमें इंसान नुमा शयातीन का सामना है। हमें जल्द से जल्द यरूशलेम पहुंचना होगा। लेकिन जनाब, तमाम अफराद थके हुए हैं और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कल सुबह तक आराम करने दो। वहां तक तो कई दिन की मुसाफत है। सुबह तक। परवरदिगारा, दुश्मन मुख्तलिफ अरबों से चार जानिब से हम पर हमलावर हुआ है और हम पर गलबा पाने वाला है। फासला ज्यादा है और मेरा बदन नातवा और मेरी ताकत महदूद। खुदाया मैं क्या करूं? परवरदिगारा, दस्तगीरी फरमा। यहां निस्बतन अमन है। यहां आ जाए, जल्दी करे, जल्दी करे। यहां आ जाए, जल्दी करे। सुलेमान। परवरदिगारा। सुलेमान, ऐ मेरे महबूब बंदे, हमने हवा को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। उससे इस्तेफादा करो ताकि ये हवा तुम्हारे हुक्म से तुम्हें जहां चाहो ले जाए।
کشتیوں کو ساحل پر کھینچ لاؤ، انہیں آپس میں جوڑنا ہے۔ ادھر آؤ، آؤ آؤ، یہاں آؤ، ڈرو مت بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا یہ اڑ جائے گی؟ سب سوار ہو جائیں، جلدی کریں دوستو، جلدی کریں۔ الہی، تیرے بھروسے پر
لوگ آئے دن تیرے معجزات دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. گناہوں کی آلودگی نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان کے قلوب کو تاریک. یہ خدا پرستی کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکنے کے مسموم عزائم رکھتے ہیں. خدایا ہم تیری راہ میں جان دینے سے خوفزدہ نہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ فتنہ گر تیری حکومت میں فتنہ و فساد نہ پیدا کر دے، اور یقیناً یہ تجھے گوارا نہ ہو. پروردگارا ایک بار پھر ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری نصرت فرما کہ تو بہترین نصرت کرنے والا ہے. اے سلیمان، جنات اور شیاطین کے مادی ہو جانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم نے تمہیں انہیں تسخیر کرنے کی طاقت عطا کی ہے، اور یہ طاقت ہم نے تمہاری اس انگشتری میں رکھ دی ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی.
शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है। वो है जो हमारे माबैन जुदाई का मौजब बना हुआ है। क्या अब भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? जान लें कि आज के बाद मेरे हुक्म से जिन्नात और शयातीन हमारी सरजमीन पर मफलूज रहेंगे। लिहाजा इस हकीर और पस्त मखलूक से हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जुर्रत के साथ जाएं और सबको कैद कर डालें।